Hello dear students, as you all are aware, we have started the new chapter, Physical Features of India. Yesterday we discussed some of the features of our Indian peninsula. Why India is called as a peninsula, I think you all are also very well aware of that, because we have Himalayan mountains, the northern plains, got it? I mean, in the towards extreme north, we have the Himalaya mountains. Then we have the northern plains. We are staying. I mean, Hamara Varanasi, it comes under the category of northern plains. Then we have the peninsular plateau. That is the south region where we have all the South Indian states, Andhra, Tamil, Kerala. All these are situated. And then we have the Indian desert. You all know about the Indian desert. Yes, Rajasthan, Gujarat. Mainly it's Rajasthan where we have the Indian desert. Then we have the coastal plains that is attached to the coast. And then we have the islands. अरे हाँ, yesterday also I forgot कि islands के बारे में तो बात किया ही नहीं. We have got two very beautiful islands. एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है. एक तरफ अंडमान निकोबार है और एक तरफ Yes, children, it's Lakshadweep. Got it? So we have already discussed. Now we started the Himalayas. So Himalayas में we have to understand which are the major features in Himalayan mountains. कल किया है हमने, but just for a revision purpose, I am just redoing it. सबसे पहले it is running in a west and east direction. स्टार्ट होता है बिल्कुल वेस्ट से और ईस्ट तक जाता है. इंडस रिवर एक तरफ है एंड जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे वी हैव द ब्रह्मपुत्र रिवर. ओके, हिमालयाज represent the loftiest, most beautiful and of the rugged mountain barriers. Rugged means it's a very different kind of landform. कहीं पहाड़ है, कहीं वैली है, कहीं पठार है, कहीं पे नदी है. तो this way it has got a very rugged mountain barrier of the world. It forms an arc. कल भी मैंने बताया था, बिल्कुल ऐसे करके. ओके, या ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, इट फॉर्म आर्क. तो डिस्टेंस क्या है हिमालयास का, कितनी दूर तक, कितने किलोमीटर्स में है? इट इज़ 2400 किलोमीटर्स एंड विड्थ जो है कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है. गॉट इट? सो 2400 किलोमीटर्स एंड विड्थ इज़ 150 किलोमीटर. Then we have the altitudinal variations. Altitude, height. Got it? It's length and breadth. इतना height कहीं पे बहुत ऊंचा है, कहीं पे छोटा सा हिमालयास है. Himalayas have got different altitudes at different places. And Himalaya 3 parallel ranges are there. In its longitude it has got 3 parallel ranges. Okay. हमने कल भी देखा था. अभी I'll show you the map. उसमें we will be getting all these 3 parallel ranges. बहुत सारे इसमें वैलीज़ हैं. एक चीज़ है ना चिल्ड्रन, व्हाट आई वाज फीलिंग इज़ ना कि हिमालयास के बारे में यू शुड नो वेरी वेल. आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. व्हाई आई एम सेइंग सो इज़, बेटा वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिमालयास. The way Himalayas are protecting us from some of our big enemies in our neighboring countries. तो हमको हिमालयास के ऊपर बहुत गर्व होना चाहिए एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिमालय माउंटेन्स विच इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द एनिमीज़ फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन. और खाली वही नहीं, उधर की हवा और बहुत सारी चीज़ों से वी आर प्रोटेक्टेड बाय हिमालयास. Many things are there, many problems India could face if Himalayas were not there. लेकिन because Himalayas are there तो we are in a very comfortable position. Got it? तो longitude और latitude तो आपको पता होगा बेटा. Yes, of course. Latitude, the lines from north to west, north to south, and longitude ईस्ट टू वेस्ट. बहुत सारे वैलीज़ हैं इसमें
बहुत घाटियाँ हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े शहर हैं। चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो इन वन ऑफ द वैलीज ऑफ हिमालयाज, मतलब थोड़ा दूर है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी फार ऑफ, इट्स फार ऑफ, लेकिन आप थोड़ा सा देर आर सर्टेन स्मॉल हिल्स नियर चंडीगढ़, वहाँ जाओगे तो इफ़ यू गो देयर यू कैन ईजली सी हिमालयाज, वहाँ से हिमालयाज नज़र आते हैं। तो बहुत सारे रेंजेस हमको यहाँ आते हैं हिमालयाज के, जैसे इट इज़ नोन, इट इज़ गिवन हियर ग्रेटर और इनर हिमालयाज। तो यहाँ से जो हमको हिमालयाज वी सी, बहुत सारे वैलीज से जब हम देखते हैं तो हमको हिमालयाज नज़र आते हैं, एंड दैट इज़ द ग्रेटर हिमालयाज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिमालय, आई एम सॉरी, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, कहीं रुक नहीं रहा है, लगातार हर तरफ हमको जो है हिमालयाज की छोटी छोटी पीक्स नज़र आ रही हैं। लॉफ्टीएस्ट इज़ बिग, बहुत बड़े बड़े पीक्स हैं, और हाइट इसकी एवरेज कितनी है 6000 मीटर, 6000 मीटर्स बहुत। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट पीक्स यू विल फाइंड हियर इन हिमालयाज, गॉट इट, इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, इफ़ यू विल सी मैप वी विल अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली। कल भी डिस्कस किया था, फिर से एक बार दिखाना चाह रही हूँ आपको। ये आपको देखना है कहाँ से हिमालयाज आर स्टार्टिंग, जस्ट सी नंगा पर्वत इज हियर, रेंज, कैलाश रेंज, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस आर देयर। रेंज ये कहते हैं ना जो कि एक तरफ से लेके दूसरे तरफ तक खाली मतलब माउंटेन, वही माउंटेन के ही पार्ट्स हैं। इट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, ठीक है। तो इट इज़ दैट। एंड शिवालिक रेंज इज़ देयर, ये आप देख रहे हो यहाँ पे शिवालिक रेंज नज़र आ रहे हैं। ये एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके, या जस्ट यू कैन सी द शिवालिक रेंज हियर। देन अब आप यहाँ पे देखो छोटे छोटे पर्वत, नंदा देवी इज़ देयर, धौलागिरी इज़ देयर, अन्नपूर्णा देयर, और बिल्कुल इंडिया और नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ ये क्या है, माउंट एवरेस्ट। पता है माउंट एवरेस्ट हमारे यहाँ से कितनी दूर है, आई मीन फ्रॉम वाराणसी, हाउ फार इट इज़। अच्छा, इस वाले मैप में नहीं दिख रहा है, दूसरे वाले मैप में बताऊंगी। इट इज़ नॉट वेरी फार ऑफ, बहुत दूर नहीं है, गॉट इट। 800 to 1000 किलोमीटर्स तक ही वी फाइंड द हिमालयन माउंटेन रेंजेस फ्रॉम वाराणसी से। तो दिस वे वी कैन सी द माउंट एवरेस्ट हियर, which we are very proud of that it is there in India. मतलब these are all mountain ना, ये सारे हिमालय की ही पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हिमालय के साथ लगी हुई हैं, got it। अब ये देखो हिमालयन रेंजेस के साथ यू हैव हियर कंचनजंगा है, बामला है, then you have Dafla Hills, Bomaila, Naga Hills are there, Patkai Bam is there, Garo Khasi, Jaintia Hills। ये छोटे छोटे जो पहाड़ है ना बच्चों, दिस इज़ द रियल, आई मीन ये हाईएस्ट पीक्स भी हमने कल बात था। चिल्ड्रन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मैं सिर्फ आपको ना आज रिवाइज करवा रही हूँ, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, गॉट इट। क्योंकि ये खाली ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ नॉट ओनली जोग्राफी, दिस इज़ समवेयर जीके ऑल्सो। तो ये जब आप जीके देख रहे हो तो इस जीके को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हिमाद्री जो है मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम, और हिमाचल भी इसको कहते हैं, और लेसर हिमालयाज। एक तरफ तो ग्रेटर हिमालयाज हैं, गॉट इट, और जैसे हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं देयर वी हैव द लेसर हिमालयाज। ये रेंजेस जो हैं इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स हैं, मतलब कंप्रेस्ड, मतलब रॉक पीसेस बड़े हैं लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़े से दबे हुए, चिपटे हुए, कंप्रेस्ड, गॉट इट। एल्टीट्यूड, हाइट,
हाइट आपको पता ही है, हिमालयाज़ की हाइट 3700 से 4500 मीटर्स। एंड उसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, चौड़ाई कितनी है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर तक खाली हिमालय माउंटेन्स ही है, इमेजिन। तो पीर पंजाल रेंज जो है सबसे बड़ा है, पीर पंजाल रेंज। अभी आप मैप में इसको देखना, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज द धौलाधार। उसके बाद भी ऑल्सो है महाभारत रेंजेस, वेरी प्रोमिनेंट वंस। महाभारत के नाम पे ही महाभारत रेंजेस पड़ा है। तो इसमें क्या है, महाभारत जो रेंजेस है जहाँ पे ये शुरू हो रहा है, वहाँ पे वी हैव कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वाओ चिल्ड्रन, हिमाचल प्रदेश में कभी जाने का मौका मिले तो प्लीज़ गो टू द कुल्लू वैली। ठीक है, यहीं से कुल्लू मनाली ये सब जो है आपका, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और ऑल दीज प्लेसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड all these are part of Himalayas. Just now that I was saying, very well known for hill stations, beautiful places. पहाड़ों की हवा बहुत खूबसूरत होती है। पहाड़ अगर नहीं होते हमारे पास तो हमारी जो है ना ज़्यादा लाइफ का जो है एंटरटेनमेंट, आई मीन द पीपल हु रियली लव गोइंग टू न्यू प्लेसेस, कोई एन्जॉयमेंट नहीं रह जाता। सो दिस इज़ क्रिएटिंग अ बिग टूरिस्ट स्पॉट एंड टूरिस्ट लोकेशन। जैसे यहाँ पे आ गया, अभी हम नाम ले ही रहे थे, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत। एटलस में इसको खोजने की कोशिश करना, ज़रूर देखना, एंड आई रियली विश ऑल ऑफ़ यू टू गो देयर। और सबसे दूर जो है, मोस्ट आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज द शिवालिक। देखें इसको मैप में, लेट्स सी वेयर इज शिवालिक। कैन यू फाइंड द शिवालिक रेंज? आउटर मोस्ट है ना ये सबसे शुरू में, यहाँ पे पूरा कैलाश रेंज, ये सारा हिमालयाज है, लेकिन ये बाहर के तरफ यू विल फाइंड शिवालिक रेंज। दिखा आपको? So they extend over a width of, ये जैसी यहाँ पे और भी नदी और ये सारा इस मैप के साथ दिया हुआ है। एंड देन शिवालिक रेंजेस कहाँ से कहाँ तक हैं? इट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड हाइट। क्या हाइट है? वेरिंग बिटवीन 900 and 1100 मीटर्स। गॉट इट? गॉट इट चिल्ड्रन? सो 10 to 50 किलोमीटर्स तक ये इसका आउटर रेंज है। एंड एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जो पहले वाली हमने देखी 3000 5000 इस तरह की मीटर था, अभी धीरे धीरे क्या होता है, उसकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है। इन द आउटर रेंजेस जो हमारी पहाड़ियों का हाइट है, एल्टीट्यूड है, it is between 900 to 1100 meters. Got it? These ranges जो है, it is composed of unconsolidated sediments. क्लास 7th में चिल्ड्रन याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, igneous, metamorphic and sedimentary। छोटी छोटी जो पत्थर के टुकड़े हैं, I hope you all know about sediments, small rock pieces brought down by rivers। ये small rock pieces लेके आते हैं हिमालयन रेंजेस से। एंड these valleys are covered with thick, बहुत मोटा सा, मतलब मिट्टी जो है that is very thick, the soil that is there, it is called as gravel and alluvium, fertile soil which is good for agriculture। लॉन्गिट्यूडनल वैली एक तो लैटिट्यूड में पड़ता है, एक लॉन्गिट्यूड में पड़ता है। लॉन्गिट्यूड आप you know it very well in the length, and latitude is in the breadth। So lesser Himalayas and the शिवालिक के बीच में जो है उसको हम दून कहते हैं। लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच का जो उसके बीच का जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज दून। इसी में यू विल फाइंड
देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। और देहरादून है, देहरादून से यू विल गो टू मसूरी, मसूरी तो पूरा हिल है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमालयाज। यस चिल्ड्रन, ये सारे माउंटेन रेंजेस है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड ऑल दी माउंटेन रेंजेस आर गिविंग अस अ लॉफ्टी सराउंडिंग्स। काफ़ी अच्छा हाइट वाला है, जहाँ पे गर्मी बहुत कम पड़ती है, अच्छा सा ठंडा रहता है, मौसम बहुत अच्छा रहता है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी वेल नोन दून्स। एक तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है हिमालयस का, बिकॉज यू प्लीज़ एंड चिल्ड्रन आई एम टेलिंग यू प्लीज़ प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन द हिमालयन रेंजेस। हिमालयन रेंजेस के ऊपर आप अपने हाथ से लिख के ये जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स एंड देन you can discuss it with me. You have to send it to me as a part of homework. I'll be posting it on the snap. So ईस्ट से वेस्ट के बीच में हिमालयाज आर डिवाइडेड, वेस्ट टू ईस्ट, एंड बहुत सारे इसमें रिवर्स हैं. दे हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज. लॉन्गिट्यूड इनका जो है, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, दैट इज़ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड लैटिट्यूड इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिमालयाज जो है, इट इज़ लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर, हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब. इसके बीच में जितने भी रिवर्स यहाँ पे निकल रहे हैं हिमालय से, तो उसके नीचे में, उसकी तलहटी में, जस्ट इन दोज वैलीज, द एरिया दैट इज सिचुएटेड, द स्टेट इज फाउंड देयर इज पंजाब. एंड एज यू नो, ओल्डन टाइम्स में, at this Arabic name, you know Punjab, I'll tell you the story behind the name Punjab. In Arabic, शायद पर्शियन में और अरबिक में, आई डोंट नो, रिमेंबर इट वेरी वेल. आब मीन्स वाटर एंड पंज मीन्स 5. तो 5 नदियों का जो देश है, द 5 रिवर्स प्लेस दैट इज़ देयर, दैट इज़ कॉल्ड, जो जिस जगह पे 5 नदियाँ के से गुजर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पंजाब. ठीक है चिल्ड्रन, पंजाब की अभी मैंने आपको स्टोरी बताई. हिमालय, इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल. हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे इसको हिमालयास कहते हैं. गॉट इट? सो जो हिमालयास है, दैट लाइज बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, क्योंकि यू नो इट्स अ बिग रेंज ना, एक कोने लेके दूसरे कोने तक हिमालयाज हैं. तो इंडिया में कहा जाता है ना, कोस कोस पे बदली, हर कोस पे बदले वाणी, और कोस कोस पे बदले पानी. पानी का टेस्ट बदल जाता है. आप देखो, आप कश्मीर में पानी पीना और फिर वाराणसी में आके पानी पीना, यू विल फाइंड वेरी डिफरेंट टेस्ट. यू नो, वाटर ऑल्सो हैज़ अ टेस्ट. दैट इज़ वॉट इज़ मैंशनड हियर. तो हिमालयाज जो दैट लाइज बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज़ नोन एज कुमाऊँ. ये भी हिमालयाज हैं, हिमालय रिवर्स से ही घिरे हुए हैं, तो इसको कुमाऊँ हिमालयाज कहते हैं. सो काली और तीस्ता रिवर, ठीक है, नेपाल हिमालयाज एंड पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता और दिहांग रिवर इज़ नोन एज आसाम हिमालयाज. हिमालय सच बिग रेंजेस, इतना दूर तक हिमालयाज फैला हुआ है. तो क्या हो रहा है कि इट इज़ नॉट ओनली गोइंग थ्रू इंडिया, बट इट इज़ टचिंग द अदर कंट्रीज एज वेल विथ सच बिग रेंजेस. थोड़ा सा पार्ट जो है हिमालयाज का, वो नेपाल में भी है. तो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो एरिया है हिमालयाज का, दैट इज़ कॉल्ड एज असम हिमालयाज. अलग अलग जगह पे हिमालयाज का नाम अलग अलग हो रहा है. हिमालय नेम्स भी दिए गए रीजनल, कि जिस एरिया से हो हिमालयाज आर गोइंग, in those places also Himalayas have got certain names. ठीक है, अभी हिमालयाज का कुछ रीजनल नेम्स अभी हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन. वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट
important names of Himalayas. Got it? ब्रह्मपुत्र जो है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयस का. गॉट इट? सबसे ईस्ट में जो रिवर है दैट इज ब्रह्मपुत्र. उसके बाद वी हैव द दिहांग गॉर्ज. यस, रिवर से कटा हुआ जो प्लेस होता है, मतलब कहीं क्या है, कंटिन्यूसली पानी गिरने के वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा बन जाता है. दैट इज कॉल्ड एज अ गॉर्ज. हिमालयस जो है बेंड शार्पली टू द साउथ. गॉट इट? मतलब कि ऐसे हिमालयस आर कमिंग, इधर पे आके ऐसे आके फिर देखो ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ है, नीचे आएंगे तो साउथ है, तो इट मूव्स टुवर्ड्स द साउथ. और ईस्टर्न बाउंड्री के पास, ईस्ट के पास जो रीजन लगा हुआ है हिमालयस का, इट इज कॉल्ड एज पूर्वांचल. पूर्वांचल, ठीक है. पूरब का जो आंचल है, पूरब में जो ढका हुआ है, दैट इज हिमालयस. अब इसमें एक छोटी सी कहानी बताऊँ आपको मैं. या चिल्ड्रन, इट इज़ जस्ट स्टोरी, अभी दिमाग में आया. देयर इज़ अ प्लेस, बिल्कुल देयर इज़ अ प्लेस, पता नहीं आप लोग गए हैं कि नहीं गए हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई श्योर माइट हैव गॉन टू अ प्लेस कॉल्ड एज विंध्याचल. सुना है आपने? विंध्याचल, आंचल, विंध्य आंचल. बहुत अच्छा सा देवी का टेम्पल है वहाँ पे. एंड दैट इज द प्लेस वेयर हिमालयाज आर एंडिंग. यस चिल्ड्रन, द लास्ट रेंजेस, ये मैं दिखाना चाहूँगी आपको मैप में. जस्ट आई वुड लाइक टू शो. No, I just wanted to show you that. दिख रहा है आपको? दिस इज विंध्या रेंज, जो यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आके इट स्टॉप्स हियर. विंध्या रेंजेस तो अलग से माउंटेन्स है. इट इज़ नॉट अटैच्ड टू हिमालयाज, लेकिन वन ऑफ द बिग माउंटेन फॉर्म्स आर द विंध्या रेंजेस. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेस्ट एंड फिनिशेस इन द ईस्ट. Correct? Yeah, I just wanted to show you certain parts. So पूर्वांचल के बारे में हमने बात किया. ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स आर देयर. तो ये जो छोटे छोटे हिल्स हैं, दैट इज़ रनिंग इन द पूर्वांचल. इट इज़ रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. मोस्टली इट हैज़ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स. इसके जो द क्वालिटी ऑफ सॉइल दैट इज़ फाउंड हियर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन. जैसा पता है एज द नेम इट सेल्फ हैज़ द मीनिंग, सैंड से बने हुए स्टोन्स, which are called as sedimentary rock. So पूर्वांचल में कौन कौन से हिल्स हैं? पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स and the Mizo hills. Got it? So these are the hills that are found in this region. ये देखो some of the very Mizo hills. It's so beautiful. Look at these flowers. यहाँ पे जो flowers हैं, और इतना ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स में ना, मतलब आप बस देखते ही रह जाओगे. आपको समझ में नहीं आएगा कि किधर आप, व्हेन यू गो टू दीज साइड्स ना, देन यू फील कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है किधर की फ़ोटो खींचे, इधर की फ़ोटो खींचें कि उधर की फ़ोटो खींचें. आई दीज प्लेसेस ना, सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, बिलीव मी. तो वो तो था पूरा हिमालयाज़ के बारे में. हमने सारा हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा. अब नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों?
Now we are going to talk about the northern plains. Varanasi lies in the northern plains. Got it? Northern plains में we have three major river systems are there. The Indus, the Ganga and the Brahmaputra. निकल रहे हैं सारे वहीं से. It is all coming out from Himalayas only. These rivers. But it is yes. अभी दिस प्लेन, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियम, इज एल्यूवियल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल इज दैट सॉइल दैट इज़ ब्रॉट बाय द रिवर्स. रिवर्स अपने साथ ये सॉइल लेके आते हैं एंड डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम एक जगह पे लाके इसको डिपॉजिट कर देते हैं इन अ वास्ट बेसिन. वास्ट बेसिन, बेसिन आपको पता है जैसे घरों में बेसिन होता है, या हल्का छोटा सा गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा नहीं. Okay, so in the vast basin lying at the foothills of Himalayas over million of years, हज़ारों लाखों सालों से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये मट्टी जमती चली जा रही है, जिसके वजह से this area has got a very fertile soil. और कितनी दूर में है ये सारा? It lies in the area of, just a minute children, please remember the area, 7 lakh square kilometer. ये पूरा एरिया जो है it is 7 lakh square kilometer. Plain area, you know Himalayas is also of a very big range and plain area is also 2400 kilometer है long, 240 to 320 kilometer broad. Longitude and latitudinal extent is very clearly mentioned here. तो विथ अ रिच सॉइल कवर, बहुत ही बढ़िया यहाँ की जो मिट्टी है ना, दैट इज़ वेरी गुड. रिच सॉइल कवर, एडिक्वेट वाटर सप्लाई. इतना अच्छा एग्रीकल्चर तभी हो सकता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉर्दर्न प्लेन्स में द काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट वी आर फॉलोइंग, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ सच गुड क्वालिटी ऑफ वाटर एंड फेवरेबल क्लाइमेट. तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज अमेजिंग. ये देखो यहाँ पे सम पिक्चर्स आर गिवन हियर. नॉर्दर्न प्लेन्स, नदियाँ हैं अपने साथ पानी लेके आ रही हैं. द रिवर्स दैट आर कमिंग आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क. डिपॉजिट, रिवर्स आर ब्रिंगिंग वाटर विथ इट ना, और रिवर्स आर ब्रिंगिंग वाटर ऑल्सो एंड सॉइल ऑल्सो. तो ये सारा सॉइल जो है वहाँ पे डिपॉजिट होता है, क्योंकि आप पहाड़ों पे से रिवर नीचे आके रिवर वाटर इज डिपॉजिटिंग ऑल द सॉइल देयर एंड वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस एंड देन देयर आर स्मॉल रिवर से घिरा हुआ आइलैंड्स. स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड्स आर आइलैंड्स आर देयर जो कि पूरा घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है. गॉट इट? यहाँ देखो एक बड़ा अच्छा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड, मतलब आइलैंड है, रिवर से घिरा हुआ प्लेस है, छोटा सा लैंड पीस है जो कि रिवर से घिरा हुआ है इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड, नदी से घिरा हुआ, पानी से घिरा हुआ एक छोटा सा लैंड पीस है. ओके चिल्ड्रन, सो आई एम स्टॉपिंग हियर. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर. ऑल द बेस्ट टू यू चिल्ड्रन एंड थैंक यू सो मच.